Dear friends, now we are going to learn a particular chart for selecting the helping verbs which are to be used in different sentences. In the previous class we have seen that we have to adopt 6 methods, 6 tricks useful for converting a sentence from active voice into passive voice. Now we are going to see how we can change sentences from active into passive, and for that we are going to use those tricks in 8 tense stations for making a sentence changing into passive voice. Only sentences based on 8 tenses will be given for conversion into passive voice. Altogether there are 12 tenses, but only 8 will be based on the sentences will be asked for changing from active into passive voice. So let us see. Now this part, this is about the name of the tenses, 8 tenses, and there is one more typical sentence in which there will be modal verbs. They also have to be converted into passive voice. So we will see one by one. Now these are the areas according to which a sentence can be in front of us. For example, if there is a sentence in front of us with the first form, and sometimes there will be s or es or ies added with the first form, what to be done? What is to be done with this? We know, we have learned that the verb should be changed into third form. That's okay. But here comes the helping verb which is to be used. If there is a verb, there is a sentence in which the verb is in the first form, that means the sentence is in the present indefinite tense. In that condition, we have to select any one of these to be returned in our passive voice. So students, all of you are requested to write down the chart in your copy and keep it before you when we convert sentences from active voice into passive voice. If you have a written chart in front of you, then only it will be easy for you to learn which sentence has come in front of us out of these 8-9 variations, which variation is in front of us, and what is to be done with that variation. So this is a typical area. This has to be learned by heart, and then only we will be able to do the required conversion of a sentence from active voice into passive voice. दोस्तों, कल हमने देखा था 6 ट्रिक्स के माध्यम से एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जा सकता है। अब आप आज देखें वो 6 ट्रिक्स को हमें 8 टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट में नेम ऑफ टेंसेस लिखा है, सेकंड पार्ट में वो सेंटेंसेस का स्वरूप जो हमारे सामने चेंज होने के लिए आ सकता है, वो स्वरूप ये इस प्रकार का हो सकता है, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, केवल 8 में से कोई एक फॉर्म हमारे सामने आएगा, तो हमें उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें एक या एक से अधिक 2 हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और वो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट ये है। और ये पूरा चार्ट आप अपनी कॉपी में उतार के रखिएगा। इसको देख के ही आपको सेंटेंस का कन्वर्शन सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे लास्ट में ये लिखा हुआ है कि यदि हमको ईज का यूज़ करना है तो वो किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ जाएगा, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। आर यदि यूज़ करना है तो सब्जेक्ट बहुवचन का होना चाहिए।
एम यदि हमको यूज़ करना है तो सब्जेक्ट आई होना चाहिए। यानी आप ये देखें कि ये सब्जेक्ट की बात कौन सी है। ये सब्जेक्ट है वो जो हम जो एक सेंटेंस को 4 पीस में कन्वर्ट कर रहे थे, और उसमें से जो थर्ड पीस जो है जिसको हमने ऑब्जेक्ट नाम दिया था, और उस एक्सचेंज के तहत थर्ड को 1 बनाया जाना पड़ता है पैसिव वॉइस में। 1 यानी सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट बनाते समय हमें पैसिव वॉइस में यदि हमारा सेंटेंस इस टेंस में से है तो पैसिव वॉइस में इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यह है, यदि हमें जो नया सब्जेक्ट जो 3 नंबर में से उठ करके नंबर 1 के लिए आ रहा है, वो यदि सिंगुलर है तो उसके साथ हम ईज लिखेंगे, प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लिखेंगे, और यदि वो बाय द वे आई प्रोनाउन है तो हम एम लिखेंगे। इस प्रकार आगे भी लिखे हुए हैं। वास और वेयर का भी लिखा है। वास सिंगुलर के साथ यूज़ करें, वर प्लूरल के साथ यूज़ करें। शैल आई और वी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, और विल बाकी सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं। हैज़, ही, शी, इट या फिर किसी एक सिंगुलर नाम यदि सब्जेक्ट बन के आता हो तो हम हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग कर सकता है। हैड जो है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ जा सकता है, उसको कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है। ये जो मॉडल वर्ब्स लिखा हुआ है ये 9वें नंबर पे मान सकते हैं अपन इसको। कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने आ सकता है जिसके अंदर कैन या कुड या मे या माइट या मस्ट या शुड इस प्रकार के मॉडल वर्ब्स आ सकते हैं, तो उसके साथ हमको केवल बी जोड़ना है। कैन या कुड को रिपीट करना तो है, उसके साथ हमें बी जोड़ना है। इसमें हमें कोई सब्जेक्ट की परहेज नहीं करना है। तो इस प्रकार की ये चार्ट आप लोग बना के रखिएगा। इसको हम 1 by 1 एक टेंस के हिसाब से हम सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।